Greetings, my dear students of class 8. Guess everybody is fabulous. In this video, we are going to start to learn our first chapter of your English literature book, that is Finding My Way Line to Line Explanation, which is of Ratna Sagar publication. So without doing delay, let's start the lesson. But first of all, we are going to start our lessons main characters, so that you will come to know that how many characters are there. So the very first is there Jangar Singh. Jangar Singh is the main character there. Okay, he was also made the Gond art very famous. Okay, Jangar Singh. And after that, Venkat Raman Singh Sham. Jangar Singh is uncle of Venkat Raman Singh Sham. Okay, means to say Venkat Raman Singh Sham was his nephew, right? And Venkat Raman Singh Sham is that person who is narrating this story, who is narrating this chapter. And his grandfather is there, Prasadi Lal Yuki. Okay, his grandfather is there, Prasadi Lal Yuki. Himalaya Bai is his mother, and Jawahar Singh is his maternal uncle. Means Himalaya Bai's brother is there, Jawaharlal Singh. So Jawaharlal Singh is maternal uncle of Venkat Raman Singh Sham. Venkat Raman Singh Sham के मामा कौन है यहाँ पर? जवाहर सिंह. Okay, and Dadi Singh Urveti and Lavda Samar Singh. These two persons were the असिस्टेंट ऑफ जांगर सिंह. जो जांगर सिंह है उसके ये दो असिस्टेंट है. कौन कौन है? दादी सिंह उर्वेती एंड लाभदा समर सिंह. ये उसके टू असिस्टेंट थे यहाँ पे. ठीक है. एंड कबीर इज ऑल्सो द वेरी फेमस पोइट कबीर देयर. एंड नेक्स्ट इज देयर धोबी. सो मेन कैरेक्टर्स आर देयर लाइक दिस. 9 कैरेक्टर्स आर देयर. लेट्स कम टू द स्टोरी नाउ. सो व्हाट द स्टोरी इज गिवन देयर. जो स्टोरी है आपकी फाइंडिंग माई वे, मीन्स कि मैंने कैसे अपनी लाइफ में रास्ता ढूंढा, अपने एम को मैंने कैसे यहाँ पर सेट किया. तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे that Jangar Singh was very famous person and he made Gond art very popular. Means Jangar Singh ही वो person है यहाँ पर जिसने Gond art को क्या किया, बहुत ही famous बना दिया यहाँ पर. और Jangar Singh के जो nephew है वो कौन है? वेंकट रमन श्याम सिंह. वेंकट रमन सिंह श्याम. तो ये भी क्या है यहाँ पर Gond artist है, बहुत अच्छे. तो Gond artist कैसे थे? क्योंकि इन्होंने किससे सीखा था? जांगर सिंह से सीखा था. इन्होंने जो Gond art सीखी थी किससे सीखी थी? ये इन्होंने सीखी थी जांगर सिंह के अंडर में. ठीक है. अभी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा. और ये जो एक्सट्रैक्ट है, दिस इज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी फाइंडिंग माय वे एंड दिस इज रिटन विद टू राइटर्स देयर. मींस टू राइटर्स को रिटन विद एस आनंद एंड वेंकट श्याम सिंह. सो वेंकट श्याम ने मींस वेंकट रमन इज देयर, वेंकट रमन सिंह श्याम. देखो कितना लंबा सा नेम है. तो इस पर्सन ने स्टोरी को नरेट भी किया और इसने उसको यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पे विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ एस आनंद. सो विदाउट making the delay, in this chapter Venkat Raman Singh Sham will tell you there about his childhood, that how did he get education, how did he get his way of life or aim of his life in this chapter. Okay, so first word meaning should also be there. So let's start. In first word meaning, what is there? First, what is bana? Bana means here a 3-string violin. जो 3 स्ट्रिंग वायलिन होते हैं इसको क्या बोलते हैं? बाना बोलते हैं. बेस्टोव्ड ऑन मी मींस होता है गेव मी, मींस मुझे कुछ दिया. इमिनेंट मींस यहाँ पे अबाउट टू हैपन, सून, बहुत जल्दी कुछ होने वाला होता है. एपोक्लिप्स मींस क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और कंप्लीटली किसी चीज का एंड होना. और यहाँ पर किस चीज का एंड हो रहा है? यहाँ पर जो है वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एंड हो रहा है. जैसे हम किसी भी डिसीज के आने पे बोलते हैं ना कि जैसे वर्ल्ड वार अगर नेक्स्ट हो जाता तो पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. तो यहाँ पर भी ऐसे ही वर्ल्ड का एंड होने वाला है जिसको यहाँ पर इसने दिखाया है. कबीर इज अ फेमस पोइट ऑफ 15th century. Everybody knows that one. Vasudeva is here a traveling singer who was dressed just like Lord Krishna. And haunting song means very beautiful song that cannot be forgotten. Next is there reticent means there, but resolute means shy but determined. means मतलब थोड़ा सा शर्माते हैं लेकिन उनको उसको पूरा डिटरमिन्ड है. वो पर्सन पूरी तरह से डिटरमिन्ड है. उसको मतलब वो अपने एम पे जो वो डटा हुआ है वो वहां से नहीं हटने वाला है. और बट्रेस्ड ट्रंक मींस क्या होता है कि विद लार्ज रूट्स ऑन ऑल साइड, जिसकी रूट्स आसपास में चारों तरफ बहुत ज्यादा फैले होते हैं वो क्या होती हैं? इसको बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर अब जो वेंकट रमन सिंह श्याम है वो अपने स्टार्टिंग से, अपने चाइल्डहुड से यहाँ पर क्या सुना रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? आई डिडंट लर्न फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स. कहते हैं मैंने स्कूल से या बुक से नहीं सीखा. क्या नहीं सीखा? आई फिश्ड इन रिवर, उसने रिवर के अंदर फिश
को पकड़ा, होलोन जो रिवर थी उसके अंदर उसने फिश को पकड़ा यहाँ पर, ठीक है। और स्टोल का कॉर्न कॉब्स, कॉर्न कॉब्स क्या होता है, देखो ये जैसे मकई होती है ना, मकई कॉर्न होती है, जैसे पॉपकॉर्न हम जिनसे खाते हैं तो वो कॉर्न होती है, तो ये जो कॉर्न लगी होती है जिस बेल के ऊपर, वहां से ये कॉर्न देखो कैसे चुरा के लेके आ रहे हैं। तो वो जो है इसने ये पेंटिंग बना रखी, अपनी गोंड आर्ट बना रखी कि कैसे वो यहाँ पर इसको चुरा के लेके आता था। लर्न टू प्लो, और यहाँ पर इसने क्या सीखा था, यहाँ पर क्या चलाना सीखा था, हल चलाना, मीन्स इसने प्लाव चलाना भी यहाँ पर सीखा था। हर्ड द बाना, और बाना मतलब ये सॉन्ग भी इसने यहाँ पर गाना और बजाना यहाँ पर सीख लिया था। मीन्स ये उसने किसी स्कूल से नहीं सीखा, ये उसके अंदर ऑलरेडी अपनी क्वालिटीज थी। फिशिंग ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी माई ग्रैंडफादर प्रसादी लाल यूकी। जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, ये राइटर कौन है, वेंकट रमन सिंह श्याम है, उनके जो ग्रैंडफादर हैं प्रसादी लाल यूकी, उनको उनकी जो एक स्टोरी उनको बहुत याद आती है। कब याद आती है, जब वो फिशिंग कर रहे होते, मतलब जब भी वो फिशिंग करते तो उनको एक स्टोरी अपने ग्रैंडफादर की याद आती है। तो वो क्या स्टोरी थी, देखो क्या उन्होंने बताया। और ये जो उनके ग्रैंडफादर थे, ये जो कहते हैं वेंकट रमन जो है वो बताते हैं कि जो मेरा ये इतना लंबा नेम है ना, कितना लंबा नेम है, वेंकट रमन सिंह श्याम, जो इनका इतना लंबा नेम है, कहते हैं ये मेरा नेम किसने दिया था, दादाजी ने दिया था, ग्रैंडफादर ने। और आपको पता है कि ग्रैंडफादर पहले के जमाने में क्या करते थे, बड़े लंबे लंबे नेम रख देते थे, तो ऐसे इसका नेम भी उसने बड़ा लंबा सा रख दिया था, ठीक है। धोबी, अब इसके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या स्टोरी सुनाते थे यहाँ पर, कि एक जो धोबी है, हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर, वो क्या करता था, धोबी यहाँ पर वॉशिंग करता था, क्लॉथ वॉश करता था रिवर के अंदर, जैसे पहले जमाने में करते थे, है ना। और जब वो वॉशिंग करता था उसके साथ ही वो जो फिश होती थी ना वहां पे, उन फिशेज को भी वो फीड करवाता था, उनके सामने दाना डाल देता था। तो एक बार एक फिश ने यहाँ पर क्या सोचा कि भाई मुझे जो है एक रियलिटी पता है इस वर्ल्ड की, और क्या रियलिटी है, इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स यहाँ पर क्या है कि बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, अबाउट टू हैपन, कुछ घटने वाला है यहाँ पर, क्या, इस वर्ल्ड का एंड होने वाला है। तो वो कहते हैं कि शी सीक्स टू रीपे हिज ग्रेटिट्यूड, मतलब वो जो उसको धन्यवाद करना चाहते हैं, वो यहाँ पर उसको थैंक्स बोलना चाहती है। और थैंक्स बोलने के लिए वो क्या कहते हैं यहाँ पर, कि जब अगर मुझे ये पता है कि इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का एंड होने वाला, तो क्यों ना मैं इस धोबी को बता दूं यहाँ पर। तो वो अपनी यहाँ पर जो है वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ये फिश, और फिश उसको क्या बताते हैं कि बहुत जल्दी इस वर्ल्ड का एंड होने वाला है। तो जैसे इस धोबी को पता चलता है ना कि इस वर्ल्ड का एंड होने वाला है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। और सरप्राइज होके वो क्या सोचता है कि हाउ कैन सेव हिमसेल्फ, कि वो कैसे अपने आप को बचाए, और कैसे अपने बिलव्ड्स को, कैसे अपने लव्ड जो उसके जो रिलेटिव्स है, कैसे उन सबको बचाए। जैसे उसके अंदर उसके सिस्टर हो गई थी, एक रोस्टर हो गया था, रोस्टर क्या है, कोक, सीओसी के कोक जो होता है ना उसको बोलते हैं रोस्टर। तो उसकी रोस्टर हो गया, सिस्टर हो गई, और उस फिश को कहते मैं कैसे बचाऊं, इन सबको सोचने लगा। तो इसका सजेशन भी किसने दिया, फिश ने ही दिया। यहाँ पर फिश क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करो, एक वुडन का बॉक्स लो, और इस वुडन के बॉक्स को तुम क्या करो, बड़ी सेफली इन सबको इसके अंदर रखो, और जब जो गॉड है अर्थ के ऊपर न्यू लाइफ का स्टार्टिंग करेंगे, न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करेंगे, तो तुम यहाँ पर जो है वो उसको तुम यहाँ पर अलाइव मिलोगे, तो तुम न्यू वर्ल्ड में भी ऐसे कैसे एज इट इज चले जाओगे, तुम्हें यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सजेशन था वो किसने दिया था, इस फिश ने ही दिया था। और इस फिश के कहने पे ये जो देखो जो बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स के अंदर देखो इसको, ये रहा यहाँ पर रोस्टर, रोस्टर को रखा, अपनी सिस्टर को यहाँ पर रखा, और अपने आप को इसको रख लिया। तो इसने यहाँ पर इन सारी चीजों को रखा। और जब जो गॉड सर्चेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ, और जब जो गॉड है वो सर्च करता है लाइफ को अर्थ पे, ही फाइंड्स द धोबी, तो उसको यहाँ पर धोबी भी मिलता है, उसकी सिस्टर मिलती है, उसकी फिश मिलती है, और रूस्टर मिलता है, एंड द वर्ल्ड इज रीमेड, और दोबारा से इस दुनिया को बना देता है। कहने का मीन्स कि जैसे फिश ने उस धोबी को ये बताया कि भी इस वर्ल्ड का एंड होने वाला है, तो वो धोबी जो बड़ा वरीड हो जाता है कि कैसे मैं अपने जो अपने रिलेटिव्स है या जो भी मेरे साथी संबंधी उनको कैसे बचाऊं। तो यहाँ पर फिश ही उसको सजेस्ट करते कि तुम ऐसा करो, एक बॉक्स लो, बॉक्स के अंदर इन सबको जो है यहाँ पर रखो, और जब लाइफ जो स्टार्ट होगी वर्ल्ड की, तो वहां पर क्या होगा, देखो जैसे ये बॉक्स के अंदर है, कहते फिर तुम एज इट इज जो हो अलाइव ही वहां पर दूसरे वर्ल्ड में चले जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो ये जो स्टोरी थी वो किसने सुनाई थी, इसके ग्रैंडफादर ने। किसके ग्रैंडफादर ने, वेंकट रमन सिंह श्याम के ग्रैंडफादर ने यहाँ पर ये स्टोरी उसको सुनाई थी। अब वो दोबारा से याद करता है कि व्हेन इट वाज अ चाइल्ड, वो कहता है कि इट वाज एज अ चाइल्ड, जब वो बिल्कुल बच्चा था यहाँ पर, आई हैड माई फर्स्ट एनकाउंटर, तो
सबसे पहले उसने क्या था कि एक बार जो वो कबीर जी से मिलता है, हिज सिंपल लैंग्वेज वाज रादर सिंपल टू द गोंडी हिंदी मिक्स, उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी और उसकी लैंग्वेज में क्या था, गोंडी और हिंदी लैंग्वेज का मिक्स था वहां पर, मतलब कहने का कि वो इन दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बोलता था और यहाँ पर वो गाना भी यहाँ पर गाता था, ठीक है, ऑन विंटर। और यहाँ पर क्या होता था कि जब विंटर सीजन आता था ना, तो एवरी मॉर्निंग लगा के चलो कि मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग क्या था, यहाँ पर एक जो है वो पर्सन आता था, अपने आप को कैसे करता था, डिस्गाइज करता था, एटायर्ड, मतलब वो क्या करता था यहाँ पर वो क्या करता था, यस, वो अपने आप को ऐसे कॉस्ट्यूम डाल लेता था जैसे कि वो क्या हो, हाँ जी, वो वासुदेवा हो, जैसे कि वो गॉड वासुदेवा हो, तो वासुदेवा की अटायर्ड, मतलब यहाँ पर उसको कॉस्ट्यूम को डाल करके, अटायर्ड को डाल करके, कॉस्ट्यूम को डाल करके वो यहाँ पर एवरी मॉर्निंग हर किसी के डोर पे आता था यहाँ पे, ठीक है। और जो ये ग्रेस है, उसकी जो डिग्निटी है उसके फेस पर दूर से ही चमकती थी, मतलब जो डिग्निटी, जो शान होती है, जो ग्रेस है, जो ग्लो था उसके फेस पे, वो दूर से ही दिखाई देता था। ही हेल्ड अ थ्री स्ट्रिंग्ड तंबूरा, देखो थ्री स्ट्रिंग तंबूरा कौन होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये है आपका थ्री स्ट्रिंग तंबूरा, और इसके साथ ये क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक है, ये सिंबल्स है, तो इनको लेकर के जैसे होता है ना कि भजन गाते हैं गलियों में घूम घूम के, तो ऐसे यहाँ पर क्या करता है, ये भी यहाँ पर गाता है, ठीक है। एंड अ हॉन्टिंग सॉन्ग ऑन हिज लिप्स, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो उनके लिप्स पर होता है, जो कि बहुत ज्यादा उनके मन पे बहुत इंप्रेशन छोड़ देता है। दो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, बेशक उसको नहीं समझ आता, आई वॉज मैस्मराइज, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टेड हो जाता है बहुत ज्यादा, किससे, बाय द म्यूजिक एंड वर्ड, उन म्यूजिक से, उस वर्ड्स से जो कि वो यहाँ पर गाता है। और वो क्या कहते हैं कि इसका जो सॉन्ग है वो बिल्कुल इतना सुंदर है जितना सुंदर क्या होता है, प्लाश के फ्लावर्स होते हैं, प्लाश के फ्लावर्स होते हैं ना, तो प्लाश के फ्लावर्स भी देखो बहुत सुंदर होते हैं, तो यहाँ पर ये देखो प्लाश के फ्लावर्स मैंने दिखा रखे हैं, तो प्लाश के फ्लावर्स जैसे, जैसे कहाँ पर, होलोन रिवर, हलोन जो रिवर है उसके साथ साथ जो प्लाश के फ्लावर्स खिले हुए होते हैं ना, ब्लूम होते हैं, कहते इतने ही सुंदर मुझे इसका सॉन्ग यहाँ पर लगा। और वो कैसे सॉन्ग, ये कैसे प्लाश के फ्लावर्स है यहाँ पर, विद मैसिव रॉक्स परहैप्स द डेब्रिस ऑफ सम प्री हिस्टोरिक वॉल्केनिक एश, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कभी हिस्ट्री में कभी बहुत पहले वोल्केनो आई हो और उस वोल्केनो की जो एश बच जाती है, जो राख बच जाती है, उनकी तरह वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं यहाँ पर, वो फ्लावर्स, ठीक है। देर वॉज ऑल्सो द रेटिसेंट बट रिसोल्यूट कहवा ट्री, यहाँ पर क्या होता है, कहवा ट्री भी होता है यहाँ पर, कहवा ट्री भी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल, जिसकी जो रूट्स हैं बहुत दूर दूर तक जो वो फैली होती है, जैसे यहाँ पर ट्री पे देखिए बहुत दूर दूर तक इसकी जो है यहाँ पर क्या है, ये रूट्स जो है यहाँ पर देखो फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि इनके कलर ऐसे लगते हैं कि जैसे ही इनके जो कलर है इनके अंदर बिल्कुल छुप गए हों। ओनली वैन स्क्रैप्ड डिड इट यील्ड ब्लड, और जब इसको ना देखो यहाँ पर स्क्रैप करते, देखो ये स्क्रैप किया ना, यहाँ पर स्क्रैप करते इसको क्या होता है, इसके अंदर से ब्लड की तरह रेड रेड कलर का मटेरियल निकलता है, और ये जो मटेरियल निकलता है कहते हैं कि ये ऐसे है कि इसको चाहे डाई में कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये तो थे यहाँ पर इसके बारे में। उसके बाद अपनी गोंड आर्ट के बारे में यहाँ पर वेंकटरमन बताते हैं कि मैंने जो है, मैं क्या करता था, एक चारकोल लेके, देखो इसके हैंड में ये देखो चारकोल का पार्ट है, चारकोल क्या होता है, लकड़ी का कोयला, तो लकड़ी का कोयला जो चारकोल है वो लेके जो है वॉल के ऊपर उसको स्पेस मिलता था, वॉल पे कुछ भी बना देता था, देखो कैसे हैंड की फिंगरप्रिंट बना रखी है, या एनिमल्स की थी वो भी, वो एनिमल्स की भी बना देता था, या कोई क्वाइंस बना देता था, मतलब जैसे भी उसको लगता था वो उस आर्ट को बनाने लग जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि देखो यहाँ पर बॉक्स के अंदर ना उसको कलर पेंसिल का जो बॉक्स मिलता है, जो ड्राइंग पेंसिल होते हैं ना उसका बॉक्स उसको मिलता है, और वो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं, आई बिगन ड्राइंग ऑन वॉल, कहता है कि मैं वॉल के ऊपर ड्राइंग करता था, जैसे बच्चे होते हैं कि चौक मिल जाता है बच्चों को, तो क्या करते हैं, चौक उठाते पेपर पे लिख दिया, उसको वॉल के ऊपर लिख दिया, रूफ के ऊपर लिख दिया जा करके, या फिर फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर उठा करके लिख देते। तो ऐसे ही ये भी करता था यहाँ पे, क्योंकि ये तो बच्चा था ना उस टाइम पे, तो बच्चों की तरह ये भी हरकतें करता था। तो कहते हैं कि जब वो न्यूज़पेपर में किसी फिल्म स्टार की फोटो देखता ना, तो वो उसको भी बनाने लग जाता था, ठीक है। और वो चारकोल का यहाँ पर यूज करता है। दिस वाज कंसीडर, कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पेशल तो इसके लिए नहीं था, स्पेशियस होता है वेरी स्पेशल, इनोस्पेशियस मींस नॉट वेरी स्पेशल, तो ये ज्यादा स्पेशल उसके लिए नहीं था, जहां पर उसको पड़ा मिलता था वहां से उठाता था और अपने क्या करता था वहां पर बनाने लग जाता था। तो मतलब यहाँ पर चारकोल का एक बहुत ज्यादा रूल जो है वो यूज करता है यहाँ पर। आई ड्रू एज रियलिस्टिकली एज आई कुड, कहते कि मैं यहाँ पर
इतना रियलिस्टिकली बनाता, जब भी वो पेंटिंग बनाता ना इतनी रियलिस्टिक बनाता था, इतनी रियल बनाता था कि देखने वाला सोचता था कि शायद ये बिल्कुल ही रियल पेंटिंग्स है यहाँ पर। आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड, और ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे इंस्पायर होता है यहाँ पर, अ सेट ऑफ पेंसिल ड्राइंग। जब उसको एक पेंसिल, जो ड्राइंग पेंसिल होते हैं, जैसे हम ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए पेंसिल यूज करते हैं, तो यहाँ पर उसको पेंसिल की जो है वो ड्राइंग पेंसिल मिल जाती है, जो कि कहाँ पर होती है, ट्रक के अंदर। देखो जैसे पहले एनिमेशन में मैंने दिखा था आपको, ये रहा ट्रक, इस ट्रक के अंदर इसको ड्राइंग की जो पेंसिल होते हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं, और इसके मिलने के बाद तो उसको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे और भी ज्यादा ड्राइंग बनानी चाहिए। और ये जो वो कौन लेके आता है, जो उसकी मदर है हिमालय बाई, वो क्या कहती है कि ये जो है देवर बाई अंकल जवाहर, जो उसका मामा था ना, मामा जी मैटरनल अंकल थे जो जवाहर थे, कहते कि वो यहाँ पर लेके आए थे उसके ब्रदर। अब जो अंकल हैं इसके, जो इसके मैटरनल अंकल हैं, डाइड एट एज ऑफ 25, मींस 25 के एज पे यहाँ पर डाइड हो जाते हैं। I would never met him. He said he never met his uncle, but some people were saying, and even he also believed that he was his reincarnation. Reincarnation means उसका पुनर्जन्म। कहते कि वो जो था, अब जो वेंकट था ना, जो वेंकट रमन सिंह श्याम थे, उनको क्या बोला जाता था कि वो उनके अंकल, जो उनके मैटरनल अंकल है जवाहरलाल, कि उन जवाहरलाल सिंह जो थे, कि उनके जो है बिल्कुल उनका पुनर्जन्म माना जाता है। और ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर इस लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि वो क्या कर सके, उनकी जो अधूरी इच्छाएं रह गई थी उनको वो पूरा कर सके। आई एम फुलफिलिंग हिज लाइफ, कि मैं उसकी लाइफ को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यू की जो है ड्रू एवरी डे ऑब्जेक्ट्स, वो हमेशा क्या करते थे, एवरीडे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ड्रॉ करते रहते थे। अब यहाँ पर वो ऐसे बनाते थे बिल्कुल टचिंग रियलिज्म, ऐसे बनाते जो बिल्कुल दिल छू जाने वाली, मतलब बिल्कुल हार्ट टचिंग थिंग्स यहाँ पर वो ड्रॉ करते थे। आई लुक्ड फॉर दिस ड्रॉइंग ऑन अ विजिट, और उसने ये सारी चीजें कहाँ पर भी देखी, उसने ये सारी चीजें कहाँ देखी, जब वो विजिट करता है सिजोरा में। सिजोरा में बहुत साल पहले जब वो जाता है तो उसने ये सारी चीजें यहाँ पर देखी, लेकिन उसकी मदर क्या कहती है कि ये सारी चीजें ना डिस्ट्रॉय हो गई थी। किस वजह से, क्योंकि जब उन्होंने अपना पुराना घर जो है वो छोड़ करके जब नया घर बनाया था, तो इस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब क्या होता है, जब वो बच्चा होता है तो सबके पेरेंट्स को क्या होता है कि क्यों ना उसको स्कूल भेज दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो वेंकट रमन सिंह होते हैं, वेंकट रमन सिंह के फादर सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको स्कूल में भेज दें। अब जो उसके फादर होते हैं उसको स्कूल में लेके जाते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वहां पर वो श्योर नहीं था कि ये जो बच्चा है वो एज इनफ है, मतलब उसकी जो एज है वो इनफ है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एज तो सफिशिएंट होनी चाहिए ना, तो उसने वो यहाँ पर कैसे टेस्ट करते थे एज, यहाँ पर जो एज वो टेस्ट करते थे वो कैसे करते थे कि एक बच्चा अपने हैंड से, अगर हेड के ऊपर से इस हैंड को लेकर के इस ईयर को टच कर देना, तो वो समझा जाता था कि हाँ भी वो इस लायक है कि उसको एडमिशन दिलवा दे। अब क्या किया उसने, जो वेंकट रमन था उसने क्या किया, बड़ा शार्पली अपना माइंड घुमाया, और उसका हाथ जैसे ऊपर से तो गया नहीं क्योंकि उसकी एज कम थी, तो उसने क्या किया, ऊपर से हाथ से इस तरफ के ईयर को टच करने के बजाय उसने नीचे से हैंड करके इस ईयर को टच कर लिया। तो यहाँ पर क्या था, इसकी इस स्मार्टनेस को देख करके जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ज्यादा हंसने लगे, बहुत इंस्पायर भी हुए इससे, और उन्होंने क्या किया, उसकी डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दी। एक तो डेट ऑफ बर्थ क्या था, उसका ओरिजिनल था, दूसरा उसने क्या किया, ऑफिशियली जो है उसको चेंज कर दिया भी, ताकि उसको थोड़ा बड़ा दिखा सके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब जो वेंकट रमन सिंह थे, अब उनके जो है 2 बर्थडेज जो है वो होने लगे, एक तो ऑफिशियल और सेकंड जो था उसका ऑलरेडी जो हुआ करता था। तो वो अपने दो बर्थडे सेलिब्रेट करने लगा, उसको तो मजे आ गए, यहाँ पर 2 बर्थडे हो गए ना उसके। और व्हेन फादर लेफ्ट मी, अब उसके फादर ने क्या सोचा भी, चलो उसको कहाँ पर छोड़ दिया जाए। उसके जो अंकल थे जांगर, आपको पता ना इसके अंकल थे, क्योंकि ये जो वेंकट रमन था ये उसका नेफ्यू था, उसका भतीजा था, और जो जांगर है यहाँ पर वो क्या है, उसके अंकल है। तो अब जो वेंकट रमन सिंह है उसको पढ़ने के लिए कहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जांगर सिंह के पास छोड़ दिया जाता है। और वो जो है वो क्या करता है यहाँ पर, जांगर सिंह हैड 2 असिस्टेंट। अब यहाँ पर बताया ना मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि उसके 2 असिस्टेंट होते हैं, एक तो दादी सिंह उर्वेती और एक लाभदा समर सिंह लाभदा समर सिंह खुशराम। तो ये उसका बहुत बड़ा लंबा नेम, उसके असिस्टेंट का भी लंबा नेम और उसका भी बड़ा लंबा नेम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 उसके असिस्टेंट होते हैं, बोथ अ फ्यू इयर्स ओल्डर। कहते हैं कि दोनों के दोनों ना जांगर सिंह से थोड़े से ही बड़े होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो हमेशा उससे एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो क्वेश्चन बताती हूँ, पहले वर्ड मीनिंग देते हैं। आई एम फुलफिलिंग हिज लाइफ, कहते कि मैं उसकी लाइफ फुलफिल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आई एम कंप्लीटिंग व्हाट ही वाज एक्सपेक्टेड टू अचीव। मतलब जब वो अलाइव था, जब वो यहाँ पर जीवित था इस अर्थ के ऊपर, तब उसकी जो एम्बिशन थी वो उनको पूरा कर रहा
रहा था। एंड अ टचिंग रियलिज्म मीन्स कहते हैं सो लाइफ लाइक मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल चीजें सामने हो। तो यहाँ पर जो ये दोनों के दोनों असिस्टेंट होते हैं, जांगर सिंह के असिस्टेंट, ये जो है वेंकट रमन सिंह से हमेशा क्या पूछते रहते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वो क्या पूछते हैं, व्हाट आर योर रूट्स, तुम्हारी रूट्स क्या है। अब उसको एक क्वेश्चन कभी समझ ही नहीं आया कि रूट्स का मतलब क्या होता है, तो वो हमेशा क्या रिप्लाई करता, माई रूट्स आर विद मी, मेरी जो रूट्स है वो मेरे साथ है, वो ऐसे रिप्लाई कर देता था। टुडे आई फाइंड देम एवरीवेयर, और कहते हैं कि आज मैं मेरी रूट्स को हर जगह जो है वो ढूंढ रहा हूँ, मेरी हर जगह जो है मैंने अपनी रूट्स को पाया है यहाँ पर। तो जो दादी होता है और जो लाभदा, ये दोनों जो असिस्टेंट होते हैं बहुत खुश होते हैं। वो क्यों खुश होते हैं, टू फील अ पेंटिंग स्टार्टिंग बाय जांगर, जब जो जांगर है उसने जो पेंटिंग स्टार्ट की थी, उस पेंटिंग को जो वो फील करते हैं, जो वो फील करता है उसको पूरी कर देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। विद डॉट्स और लाइन और डॉट्स के साथ उसको पूरा कर देते हैं। इन पैटर्न सेट बाय द मास्टर, मास्टर ने उसको पैटर्न को सेट कर दिया और उन दोनों ने उसको कलर कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद व्हेन इट केम टू मी, और जब वो इसके पास आते हैं, आई ड्रू पैटर्न दैट लुक्ड लाइक क्रैक्ड अर्थ, और वो जो वेंकट रमन के पास जब वो आते हैं ना, तो वेंकट रमन क्या कर रहा होता है, उसने अर्थ का ऐसा जो पैटर्न है वो बनाया जैसे कि क्रैक आ गए हों अर्थ के अंदर, ठीक है। तो उसको देख करके जो उसके जो अंकल होते हैं जांगर सिंह वेंकट रमन के, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। हाउ डिड जांगर टीच, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जांगर सिंह का टीच करने का एक अलग ही मेथड था। सबसे पहले वो क्या करते थे, वो कहते हैं कि मुझे एक आज भी एक स्टोरी याद है आनंद की, आनंद उसके साथ है ना, जो आनंद ने इसने चैप्टर लिखा है यहाँ पर, तो जो आनंद है उसकी स्टोरी याद है, उसने उसको क्या बताया था कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस होते हैं वो कैसे सिखाते हैं, जैसे सारे गामा पा सिखाते हैं, तो इसमें पहले तो सा सिखाएंगे, फिर जैसे गा सिखाएंगे, तो ऐसे अलग से ना प्राइमल नोट बनाते हैं, मतलब एक पेज पे जैसे लिख के दे दिया कि सा, आप तुम सा को अलग अलग टोन में जो है वो गा करके उसकी प्रैक्टिस करो, फिर गा दे दिया, गा को भी फिर एक प्राइमल नोट के ऊपर दूसरे नोट के ऊपर बना करके दे दिया, दूसरे नोट पे लिख दिया इस वर्ड को अलग अलग वे से आप अलग अलग टोन में प्रोनाउंस करो। तो ऐसे ही वो अलग अलग टोन में उसको जो प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये स्टोरी किसने बताई थी, आनंद ने बताई थी वेंकट रमन को, कि ऐसे ऐसे जो है वो इंडिया के अंदर जो हिंदुस्तानी म्यूजिशियन है ऐसे हमें यहाँ पर म्यूजिक सिखाते हैं, ठीक है। और जो लोग थे यहाँ पर क्या करते थे, जो भी सीखने वाले होते थे, जो पॉपुलर होते थे, जो यहाँ पर स्टूडेंट होते थे, वो क्या करते थे, व्हाट इट इज शी सेड रियली लर्न, वो क्या लर्न करते थे, बेशक उनको कुछ नहीं पता होता था, तो अनबिनोविस्ट मतलब बेशक उनको कुछ नहीं पता होता था अपने आप से, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे राग इसके ऊपर बना देते थे अपने आप से, जैसे होता है ना कि मतलब अपने ही इन्वेंशन करने लग जाते हैं बच्चे, तो ऐसे ये भी यहाँ पर इन्वेंशन करने लग जाते हैं, कुछ कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाने लग जाते हैं। हाउस होल्ड ड्रग मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो बोरिंग सा फील होता है, वर्क डन एट होम, जो घर पे किया जाता है। इंडल्ज यू का मतलब होता है अपने आप को कहीं पर इंक्लूड करना, शामिल करना, या फिर जेनरस टू यू मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा जेनरस हो जाना, इंक्लूड होना कहीं पे भी। अनबिनोविस्ट मतलब क्या होता है कि विदाउट हर नोविंग, बिना उसके जाने। न्यू भी क्या होता है, न्यू कमर, जो न्यू स्टूडेंट स्कूल में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यू कमर हम बोलते हैं, नया कोई भी आने वाला। और अप्रेंटिस क्या होता है, ट्रेनी, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो यहाँ पर जो जांगर सिंह होते हैं उसको सिखाने, वो जो ना अपने स्टूडेंट्स को, जो न्यू कमर होते हैं जो पहली बार स्कूल में आते हैं, उनको सिखाने का अलग ही मेथड होता है इसका यहाँ पर। तो जांगर सिंह वो क्या करते हैं यहाँ पर, जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो उसको क्या करते हैं, उसको जो है 2 kg मसाला जो है वो ग्राइंड करने के लिए देते हैं। 2 kg मसाला तो कम तो नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। और उसको क्या देता है, एक सिलबट्टा देता है, ठीक है, स्टोन का सिलबट्टा देता है, बिल्कुल फ्लैट वाला, देखो जैसे फ्लैट मैंने ये दिखा रखा है यहाँ पर, तो फ्लैट वाला सिलबट्टा देता है। और इसके साथ साथ क्या देता है, पेस्टल, पेस्टल क्या होता है, जिससे उसके ऊपर पीसते हैं, तो पेस्टल देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिलबट्टा देते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन एंड पेस्टल दे हैड टू ग्राइंड मसाला, 2 kg मसाला, ओके। एंड व्हाट वाज इन द 2 kg मसाला, रेड चिलीज, कोरिएंडर सीड्स मींस धनिया, क्लोव्स होते हैं, लौंग्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिनेमम, सिनेमम में होता है दालचीनी, और जो भी चॉप्ड ऑनियन, ऑनियन जो अनियन होता है, अनियन को चॉप्ड करना, यहाँ पर काटना यहाँ पर, ठीक है। गार्लिक और जिंजर मतलब लहसुन, और अदरक, अदरक मतलब सबकी बना करके एक सॉस, बहुत ही कंसिस्टेंट पेस्ट, बहुत ही बारीक सा पेस्ट यहाँ पर उनको बनाना होता था। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन, और जांगर सिंह के पढ़ाने का ये एक मेथड था, और यही उसका फर्स्ट लेसन था। वो क्या कहता था कि अगर वो दूर से बैठ के उनको देखता भी रहता था, मॉनिटरिंग करता था वो उनकी, सेट मॉनिटरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर से उनको मॉनिटर भी कर रहा होता था। और वो उनको क्या सिखाता है यहाँ पर,
वो सिखाता है कि अगर आपको इफ यू डोंट नो हाउ टू होल्ड द स्टोन एंड पेस्टल, हाउ विल यू होल्ड द ब्रश एंड पेंट। कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता कि जो स्टोन है, स्टोन को कैसे पकड़ना है और पेस्टल को कैसे हेल्ड करना और कैसे जो ग्राइंड करना है आप मसाला, अगर तुम्हें ये नहीं आता, देन हाउ विल यू होल्ड अ ब्रश एंड पेंट फॉर ड्रॉइंग और फॉर पेंटिंग भी। पेंटिंग के लिए तुम कैसे ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पर तुम्हें तो आएगा ही नहीं यहाँ पे करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि जांगर सिंह जो थे, वो उनको हमेशा वो बोलते भी रहते थे, टाइमली टाइमली उनको बोलते भी थे भी अगर तुम्हें ये होल्ड नहीं करना आएगा तो इट मीन्स तुम्हें पेंटिंग कभी भी नहीं आएगी। और यहाँ पर जो जांगर सिंह है वो क्या करते थे, वेंकट रमन को बोलते थे कि वो भी उसके साथ गाए। और गाने उसके कैसे होते थे, वो कैसे सॉन्ग गाता था, कर्म से रिलेटेड सॉन्ग गाता था, जैसे कर्मा कर्म धर्म जैसे होते कर्मा से रिलेटेड हो गया, या फिर जो रिलीजियस सॉन्ग्स हो गए वो हो गए, भजन हो गए यहाँ पर। ठीक है, और वो यहाँ पर गाता था, लेकिन वो किसके साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यहाँ पर वो गाया करता था। और कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, फ्लूट है, तबला है, मंदाल है। यहाँ पर मंदाल क्या होता है, यहाँ पर अ काइंड ऑफ ड्रम होता है, ड्रम जैसे बजाते हैं ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो और हारमोनियम। मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही वाज singing the religious song, he was singing the patriotic songs also there, and he taught us to live, means वो उसने हमें सिखाया कि कैसे जो है रहते हैं, कैसे लीव करते हैं। आर्ट जस्ट केम अलोंग, और आर्ट जो वो कैसे अपने आप से सबके अंदर आ जाती है। सो वेंकट श्याम एंड एस आनंद हैड रिटन दिस चैप्टर एंड वेंकट रमन is narrating this chapter. Okay, so this was the story, this was the summary, this was the line to line explanation of this chapter. I hope everybody would understand the chapter. If you would like this one, okay, you should watch this one, and thank you so much for watching the video. Have a nice day everybody.